Hello everyone, welcome back. So today we are discussing chapter 1 of class 12th. Uh, till now we have studied about relation, equivalence relation, different types of relation, reflexive, symmetric, transitive, and we are done with relation. In this video we will proceed with function, types of function and composition of two functions. So first of all we will introduce you to functions. What is a function? So formal definition of a function says that let A be a set, f is a function from A to B if every element of A is associated to a unique element of B. Unique element of B. So the 2 points that you need to keep in mind are every element of A. Every element of A has an image or is associated to an element of B. So no elements of A can be left, can be leave. What I mean to say is, if this is a set A and this is a set B, then relation is any subset of A cross B. So one element can be associated with two elements. Two elements can be associated with one element, and there can be a relation where we don't talk about this 3. 3 is not included. 3 is not related to any of the element of B. But if we talk about a function, in a function, no element of A should be left. That is, every element of A should be related to an element of B. Okay. Then the another condition, the second point that you need to keep in mind is associated to a unique element of B. इसका क्या मतलब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एलिमेंट को आप 2 से मैप करो. एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से ही एसोसिएटेड होगा बी के. ये एक रिलेशन हो सकता है, बट ये एक फंक्शन नहीं हो सकता. रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है. ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जहां से फंक्शन डिफाइन किया है, जिन एलिमेंट्स पे फंक्शन डिफाइन किया है, every element of that set should be associated to a unique element of the another set. Okay, now we will give a special name to these sets. So the set from which a function is defined, a set on which the function is defined is called domain set. ठीक है, so we can write that every element of domain, ठीक है, and B जहां पे जिसके एलिमेंट्स से F A के एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है, this F is known as codomain. ठीक है, so what we will say is every element of A has a unique element in B. Okay, so what do we say? F is sending 1 to A. ठीक है, so this 1 belongs to set A and A belongs to set B, and this A is called image of 1 under the function f.
That is, under the function, or you can say a relation, under the relation f, 1 is related to a. The second statement is, under the function f, the image of 1 is a. So देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया हमने सबसे बड़ा सेट, उसके बाद उसके ऊपर एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन. रिलेशन पे भी जब हम ये कंडीशन लगा देंगे कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए की एक इमेज होनी चाहिए और वो एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक की दो इमेज नहीं हो सकती. पहले हमने रिलेशन जो डिफाइन किया था पिछली बार, हमने ऐसे लिखा था ना कि 1 2 से भी एसोसिएटेड है और 1 हमारा 3 से भी एसोसिएटेड है. तो ये रिलेशन में हो सकता है, लेकिन ये रिलेशन मतलब फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर आप किसी को फंक्शन बोल रहे हो तो उसमें 1 की यूनिक इमेज 2 होगी. उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 की इमेज अंडर द फंक्शन 2 आ रही है, 2 की इमेज अंडर दिस फंक्शन 3 आ रही है. ठीक है, 3 की इमेज अंडर दिस फंक्शन 1 आ रही है. ठीक है, और 4 की इमेज अंडर दिस फंक्शन 2 आ रही है. ठीक है, यहां पे अगर मैं इस फंक्शन को बनाना चाहूं, देखिए, तो ये हमारा, ये मैंने रिलेशन लिखा. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है ना. ठीक है, अगर मैं ए सेट ये लिखा, मैंने ए सेट ये लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 is related to 2, 3 is related to 1, 2 is related to 3, and 4 is related to 2. So every element of set A is covered. Here, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज है, जी है. क्या हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट ऑफ को डोमेन से रिलेटेड है? जी हाँ. तो ये एक फंक्शन है. ठीक है, अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि 1 भी हमारा 2 पे जा रहा है, 4 भी हमारा 2 पे जा रहा है. ऐसा पॉसिबल है, लेकिन 1 की दो इमेज पॉसिबल नहीं है कि 1 1 पे भी जाए और 1 2 पे भी जाए. ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आप एक फंक्शन की बात करोगे तो. क्या बोला इसने? यूनिक इमेज होनी चाहिए. 1 सिर्फ एक ही एलिमेंट से यहां रिलेट हो सकता है. ठीक है, तो दो चीजें हैं फंक्शन में जो आपको ध्यान रखनी है कि डोमेन की हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद हम एक सेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेंज सेट. रेंज क्या होता है? तो रेंज ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज f of x, x belongs to a. मतलब क्या है इस बात का कि x belongs to a के लिए आपको सारे इमेज कलेक्ट करनी है, इमेज का सेट बनाना है. तो इसका क्या मतलब है? अगर हम इस फंक्शन के हिसाब से देखें तो एक एक करके आप a के एलिमेंट उठाए. तो 1 उठाया, f of 1 क्या आ रहा है? f of 1 आ रहा है 2. तो 2 हमारा रेंज सेट में चला गया. फिर हमने a का दूसरा एलिमेंट उठाया 2 की इमेज क्या आ रही है? 3. तो रेंज सेट में 3 चला गया. 3 उठाया, फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट, उसकी इमेज क्या आ रही है? 1. तो 1 चला गया. 4 उठाया, 4 की इमेज क्या आ रही है? 2. तो सेट में रिपीट होते नहीं है. तो रेंज सेट हमारा बन गया 1 2 3. इस फंक्शन में जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसमें हमारी ये क्या हो गया? रेंज सेट, रेंज ऑफ f. अगर मैं डोमेन ऑफ f की बात करूं तो डोमेन क्या है? 1 2 3 4. ठीक है, और कोडोमेन क्या है?
कोडोमेन of f is 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आप 11th में पढ़ चुके हो फंक्शन के बारे में। फंक्शन की डेफिनेशन हमने बता दिया, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज सेट क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। रिलेशन और फंक्शन में कहाँ डिफरेंस आता है ये हमने बता दी है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं कि उसके बाद आपने 11th में कुछ फंक्शंस के एग्जाम्पल भी किए हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे फंक्शन हमने डिफाइन किया f ऑफ x इज 2, तो ये पूरे लाइन पे, रियल लाइन पे हमारा क्या रह रहा है, 2 रह रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। फिर आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है, f is from r to r। okay? तो f is from r to r हम ले रहे हैं, हम क्या करें, f of x is x, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है, ठीक है, सेंटर से पास होगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन क्या होता है कि f of x क्या हो जाता है, जीरो जाता है, हर एक एलिमेंट कहाँ मैप होता है, जीरो पे मैप होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस। फिर आपने पढ़ा होगा मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा आता है। ठीक है, तो आपने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े हैं और इनमें आपने ग्राफ्स भी इनके पढ़े हैं। ठीक है, अब इन फंक्शंस को हम देखेंगे कि ये जो हम आज टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे ये कहाँ फिट हो रहे हैं, उसमें देखेंगे हम। ठीक है, और अच्छा, नाउ वी विल प्रोसीड to what is given in your syllabus right now in 12th standard, that is types of function. So first thing we will discuss is many one function. Next is one function. Or injective function. Then we will do onto functions, or we call them surjective. Next is bijective functions. Okay, so let's do them one by one. So many one function, इसका एग्जाम्पल हमने ये देखा कि बहुत सारे एक पे मैप हो रही है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ डोमेन की इमेज क्या आ रही है, एक सिंगल एलिमेंट आ रही है। जैसे इसमें 1 की इमेज क्या थी, 2 थी, 4 की इमेज भी क्या थी, 2 थी, तो एक से ज्यादा एक एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं। मैनी वन में आप और क्या एग्जाम्पल देख सकते हो, देखिए, जैसे कि अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ रियल, मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, 1.1 2.2 3.3 7.8, every element 0 -1 -5, every element is mapped to 2। ठीक है, every element is mapped to 2, तो many elements are mapped to a single element, so many one function। I hope you are clear with it। ठीक है, नेक्स्ट इज वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या कहता है कि यू हैव वन कॉरेस्पॉन्डेंस, दैट इज से आई हैव 1 2 3 1 2 3,
1 function says that there is 1-to-1 correspondence, like 1 is mapped to 1, 2 is mapped to 3, 3 is mapped to 2. ठीक है. No two elements have same image. इसमें आप एक तो ये चीज बोल सकते हो कि अगर आपने 2 डिफरेंट एलिमेंट्स उठाए हैं डोमेन से तो उनकी इमेज जो है वो डिफरेंट होगी. ठीक है. और अगर आप इमेज उठा रहे हो, जैसे कि आपने 1 उठाया, तो उसकी जो प्री इमेज होगी वो एक सिंगल एलिमेंट होगी. इसकी जो प्री इमेज होगी वो सिंगल एलिमेंट होगी. देखो, अगर आप डोमेन से कोडोमेन जा रहे हो तो क्या आप बोलोगे? इमेज बोलोगे. और कोडोमेन से यानी रेंज सेट से, बेसिकली प्री इमेज तो रेंज सेट पे ही डिफाइन होगी, क्योंकि कोडोमेन के जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट से कोई एलिमेंट यहाँ पे एसोसिएटेड हो डोमेन का. कोडोमेन में खाली छूट सकते हैं. ठीक है ना, डोमेन में खाली नहीं छूट सकते हैं. तो प्री इमेज बोलते हैं हम. वापस जब आते हैं, प्री इमेज यानी प्री 1 की प्री इमेज 1 है अंडर फंक्शन एफ. ठीक है. 2 की प्री इमेज अंडर फंक्शन एफ क्या है? 3 है. और 3 की प्री इमेज अंडर फंक्शन एफ क्या है? 2 है. तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 1-1 है फंक्शन तो प्री इमेज में एक सिंगल एलिमेंट आएगा, सिंगलटन सेट आएगा. ठीक है. एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं आ सकता. अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की. तो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? देखो, फंक्शन में क्या है, डोमेन का कोई एलिमेंट तो खाली छूट नहीं सकता. ऑन टू फंक्शन अगर हो जाए तो वो बोलता है कि को डोमेन का भी कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट सकता. सारे एलिमेंट इसकी इन सारे एलिमेंट्स क्या क्या होगी? इमेज होगी. और वो इमेज जो है यहाँ के सारे एलिमेंट्स कवर कर रही है कोडोमेन के, कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा. तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा. उसे हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव बोलते हैं. ठीक है. अगर आपको किसी फंक्शन को ऑन टू दिखाना है या किसी फंक्शन को 1-1 दिखाना है तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे? ठीक है, अब इस पे बात करते हैं. तो अगर आपको किसी भी फंक्शन को 1-1 दिखाना है तो आप x1 और x2 लोगे बिलोंग्स टू द डोमेन सेट A. x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं जो एक डोमेन सेट से उठाए हमने A से, ऑफ फंक्शन f हमने लिया है फ्रॉम A टू B. तो आपको क्या दिखाना है? 1-1 दिखाना है. तो हम कैसे दिखाएंगे? हम क्या लेके चलते हैं? हम मान के चलते हैं कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल है. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो x1 को जहां भेज रहा है यानी इमेज ऑफ x1, और जो फंक्शन x2 को जहां भेज रहा है यानी इमेज ऑफ x2, दोनों इक्वल है. ठीक है. तो फंक्शन को 1-1 होने के लिए अगर आप ये लेके चलोगे या लेट करोगे, मान के चलोगे, और अगर आपका यहां से ये प्रूव हो जाता है कि x1 भी x2 के इक्वल है तो आपका फंक्शन 1-1 हो जाता है. ठीक है. अगर किसी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है, इमेज इक्वल आ रही है, तो वो एलिमेंट्स भी खुद इक्वल ही हो सकते हैं. यानी कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं आ सकती. एक बात को कहने के दो तरीके. ठीक है. एक तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो कि आप लेट करके चलो कि इमेज हमारी सेम है, तो हमारी जो प्री इमेज हमने ली थी x1 जो है वो x1 x2 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. या फिर जैसा कि हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती. ठीक है. तो ये बात अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो हमने x1 x2 लिए. कहाँ से लिए? A से लिए, डोमेन से लिए. हम डिस्टिंक्ट लिए यानी x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2. अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो f ऑफ x1 भी
एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल नहीं हो सकता। x1 और x2 डोमेन में है तो फंक्शन के अंडर उनकी इमेज तो होगी, क्योंकि फंक्शन क्या करता है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन को डोमेन के एक एलिमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसकी इमेज तो होगी। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर x1 और x2 डिस्टिंक्ट हैं तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट ही होंगी, एक एलिमेंट नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज लिख सकते। एक तो आप ऐसे जा सकते हो कि आपने लेट ये किया और फिर आप ये प्रूव कर दें तो आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अगर आप लेट ये कर रहे हो तो आपको प्रूव ये करना पड़ेगा 1 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए। एक ही बात को दो तरीके से लिखा है। बात क्या है कि एक अगर दो एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनकी इमेज भी डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर हम इमेज सेम लेके चल रहे हैं, यानी एफ ऑफ एक्स वन जो एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है, तो यहाँ पे जब आप प्री इमेज निकालोगे तो वो भी बराबर ही आएगी, डिफरेंट नहीं हो सकती। ठीक है, 1 1 ही होगा। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू ऑन टू। किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना, इसका क्या मतलब है? ऑन टू का मतलब बेसिकली मैंने क्या बोला कि को डोमेन का हर एक एलिमेंट भी कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि को डोमेन का हर एक एलिमेंट कहाँ जा रहा है, रेंज सेट में जा रहा है। यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ f। ठीक है, अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शन हमने क्या बोला था, f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी डोमेन। ठीक है, f हम ले रहे हैं a टू b, तो को डोमेन ऑफ f हो गया हमारा b, तो हमारा रेंज ऑफ फंक्शन f क्या हो गया, b। तो हमारा वो सेट जो इमेजेस इकट्ठी कर रहा था वो पूरा b के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप b से कोई भी एलिमेंट उठाओ, ये दोनों सेट इक्वल हैं तो दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, कार्डिनैलिटी भी सेम होंगी। बात समझ में आई? और अगर कोई एलिमेंट इसमें जा रहा है तो इसमें वो एलिमेंट कब जाएगा, जब कोई एलिमेंट x a में मिलेगा सच दैट f ऑफ x वो f ऑफ x यानी इमेज ऑफ x वो एलिमेंट बन रहा हो। तो हमने लिया कोई y जो b में है, b किसके बराबर, इसके बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y हमारा इस सेट में है। ठीक है, इस सेट में होने का क्या मतलब है कि एक देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x इज y। y का इसमें जाने का क्या मतलब है कि वो किसी एलिमेंट की इमेज रहा होगा, किसी एलिमेंट की इमेज रहा होगा। वो एलिमेंट कहाँ होगा, a में होगा। तो एक एलिमेंट a में एग्जिस्ट करेगा जिसकी इमेज y रहा होगा। तो अगर आप कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट b से उठाओ, को डोमेन से उठाओ, और उसके लिए आपको डोमेन में एक x मिल रहा है सच दैट f ऑफ x y बन जाए, तो आप उस केस में उस फंक्शन को क्या बोलोगे, ऑन टू बोलोगे। ठीक है, ओके, अगर आपको फंक्शन एफ एक्स ऐसे दिया है, जैसे हमने बोला x प्लस 3 है, ऐसे आपको फंक्शन दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे चेक करोगे कि फंक्शन हमारा दिया है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप यहां से कोई भी
नेचुरल नंबर उठाओ, जैसे कि मैंने अगर यहां से 1 उठा लिया तो क्या 1 किसी की इमेज होगा अंडर दिस फंक्शन? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x क्या 1 हो सकता है? बताओ, 1 नेचुरल नंबर है, ये बात ठीक है, तो ये हमारा कोडोमेन में है। हमें अगर इसको ऑन टू, अगर ये ऑन टू होगा तो उसका क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट यहां होगा तो उसकी एक प्री इमेज यहां मिल जाएगी। तो हमने मान लिया कि x है डोमेन में, सच दैट f ऑफ x क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। f ऑफ x की क्या वैल्यू दी है इन्होंने? x प्लस 3 वैल्यू दी है, वो 1 आ रहा है। इसका मतलब x क्या आ गया हमारा? -2 आ गया। x -2 आ गया, आप तो खुश हो गए भाई, x -2 आ गया। लेकिन आप ये चेक कीजिए कि -2 क्या एक नेचुरल नंबर है? डोमेन सेट में ही नहीं है भाई x तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की इस फंक्शन के अंदर कोई प्री इमेज नेचुरल नंबर में नहीं है, तो 1 यहां पर रेंज सेट में नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो रेंज सेट है, रेंज सेट जो है वो प्रॉपरली कंटेन्ड है हमारा कोडोमेन में। रेंज सेट हमारा इक्वल नहीं है कोडोमेन के। ठीक है, 1 जो है वो रेंज में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, अगर आप 2 देखोगे तो 2 भी नहीं करेगा, 3 देखोगे 3 करेगा क्या? 3 भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप यहां पर 3 रखोगे, अगर आप यहां पर 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 3 - 3 0। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो आपको इसके अंदर ना तो 0 की मिलेगी, ना 3 की मिलेगी, ना 1 की मिलेगी, ना 2 की मिलेगी। तो यहां पर ये हमारा ऑन टू नहीं है। ठीक है, एवरी एलिमेंट हमारा यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है जो रेंज सेट में जा रहा हो। ठीक है, वही अगर मैं इसको फंक्शन को रियल से रियल कर देती और फंक्शन मैं डिफाइन कर दूं x + 3, सिंपल पॉलिनोमियल है, आपने पढ़ा होगा पहले। अगर मैंने रियल से रियल डिफाइन कर दिया तो क्या ये ऑन टू हो जाएगा? हो जाएगा। देखो, अगर मैं कोई भी y उठाऊं, कहां से? कोडोमेन से। ठीक है, तो उसकी मुझे क्या निकालनी है? प्री इमेज। अगर मिल जाए तो ये ऑन टू हो जाएगा। और प्री इमेज ध्यान रखना कि डोमेन में होनी भी चाहिए, ये चेक करना जरूरी है। तो अगर y हमारा जो है हमने R से उठाया, रियल नंबर के सेट से उठाया, सच दैट हम मान रहे हैं कि एक x एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट वो इमेज y है उसकी। ठीक है, हमें इसकी एग्जिस्टेंस दिखानी है। ठीक है, ये x हमें ढूंढना है। अगर ये x हमें मिल गया तो ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान रहे कि f ऑफ x y है, तो f ऑफ x की क्या वैल्यू? x + 3 = y। let y be an arbitrary element such that y belongs to real number. Consider f of x = y. This implies x + 3 = y. यहाँ से x आ गया हमारा y - 3। तो आप कोई भी y उठा लीजिए R से, -3 कर देंगे तो वो भी एक रियल नंबर आएगा। तो x हमारा रियल नंबर मिल गया। तो अगर मैं f ऑफ x की जगह यहाँ पे y - 3 रख दूं तो क्या आ जाएगा? y - 3, f ऑफ y - 3, f ऑफ y - 3, तो y - 3 + 3, तो क्या आ जाएगा? y आ गया। तो y की प्री इमेज क्या होगी? y - 3। तो इस केस में हमें
y की प्री इमेज मिली जो कि है y-3, जो कि एक रियल नंबर होगा, और हमारी डोमेन क्या है, एक रियल नंबर है, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू हो जाएगा। तो आपने देखा कि सेम फंक्शन है, अगर आपकी डोमेन और डोमेन भी चेंज हो जाती है तो उसके ऑन टू नेस पे फर्क पड़ता है, उसकी वन नेस पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसका भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और मैंने फंक्शन लिया है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैंने किस पे लिया है, नेचुरल नंबर पे लिया है, तो ये फंक्शन 1 है क्या? 1 का क्या मतलब है कि एक एलिमेंट, 1 का क्या मतलब है, किसी भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती, इमेज भी डिस्टिंक्ट ही होगी। देखो अभी ये देखते हैं, 1 चेक करनी है इसकी, तो 1 के लिए मैंने क्या बोला, आप दो तरीके यूज कर सकते हो। तो मैंने ले लिया, लेट x1 जो है और x2 हमारा नेचुरल नंबर से है, और हमने ले लिया कि x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है, x1 का स्क्वायर भी x2 के इक्वल नहीं होगा, ये आप x2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, ये चीज आप मानोगे? क्यों मानोगे भाई? देखो नेचुरल नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। ठीक है, 1 की इमेज क्या होगी अंडर दिस मैप? 1 होगी। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। एफ ऑफ 2 क्या होगी? 4 होगी। 3 क्या होगी? 9 होगी। 4 का क्या होगा? 16 होगा। 5 का क्या होगा? 25 होगा। तो अगर आप दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर उठा रहे हो तो उनका स्क्वायर भी डिस्टिंक्ट होगा, और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा कि एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी को अगर मैं दूसरे केस से करना चाहूँ, दूसरा तरीका जो हमने बोला था कि आप क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि x1 और x2 हमारे नेचुरल नंबर से हैं, और हम लेके चलेंगे कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर है। तो इसमें अगर हमारा प्रूव हो जाए कि x1 x2 के इक्वल है तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फंक्शन ओके, तो f ऑफ x1 क्या आएगा? देखो फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर, f ऑफ x2 हो जाएगा x2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। अब एक बात बताइए मुझे, क्या दो नेचुरल नंबर का सम, देखो इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है और या ये 0 है। ठीक है, तो क्या दो नेचुरल नंबर का सम 0 आ सकता है? बताइए, दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब क्या होगा कि x1 जो है वो x2 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या आ गया? 1 आ गया। यह हमने क्यों डिस्कार्ड किया कि दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता। करके देख लीजिए, यहाँ से क्या आ रहा है कि x1 हमारा माइनस x2 है, तो अगर मैं x2 को 1 रखूं तो x1 क्या आ जाएगा? -1। क्या -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है। अगर मैं x2 को 2 रखूं, नेचुरल नंबर है, तो x1 क्या आ जाएगा? -2। क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कंडीशन डिस्कार्ड हो जाएगी, और इसको
ट्रू करने के लिए इक्वालिटी को, इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा x1 जो है वो x2 के इक्वल आ गया और हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, तो अब हमने किस पे देखा, नेचुरल नंबर के सेट पे देखा, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब इसी को मैं अगर रियल नंबर के सेट पे देखूं तो क्या ये 1 1 रहेगा? रियल नंबर के सेट पे देखो, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें अब हमारे बीच वाले पॉइंट्स आ गए, 1.1 आ गया, 2.2 आ गया, 3.3 आ गया, और 0 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, -4 आ गया, -5 आ गया, -3 आ गया। ठीक है, ये सारे एलिमेंट, और इसमें भी ये सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो अब देखिए 1 की इमेज क्या है, 1, -1 की इमेज क्या है, 1, 2 की इमेज क्या है, 4, -2 की इमेज क्या है, 4 अंडर दिस फंक्शन। ठीक है, 3 की इमेज क्या है, 9, -3 की इमेज क्या है, 9। तो क्या ये 1 1 है? दो की इमेज सेम आ रही है, -3 और 3 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं जिनकी इमेज क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो क्या ये 1 1 है? नहीं है, ये 1 1 नहीं है। या आप क्या बता सकते हो, डायग्राम, मतलब ऐसे आप समझ, डायग्राम बना के आप समझ सकते हो ये चीज कि 1 1 नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है। जब हम नेचुरल नंबर पे ले रहे थे तो ये 1 1 था। जब हम फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ले रहे थे तो ये फंक्शन था 1 1 था, बट ऑन टू नहीं था क्योंकि सारी कवर नहीं हो रही थी। 5 की कोई प्री इमेज नहीं थी, 6 की कोई प्री इमेज नहीं थी, 7 की कोई प्री इमेज नहीं थी। लेकिन अगर आप अगर आप इसको रियल नंबर पे कंसीडर करोगे, अगर आप इसको रियल नंबर पे कंसीडर करोगे तो किसकी प्री इमेज नहीं होगी बताइए? 5 की प्री इमेज होगी क्या? 5 किसका स्क्वायर होता है? √5 का। √5 एक रियल नंबर है, इरेशनल है, इरेशनल यूनियन रेशनल इज रियल, तो ये रियल नंबर है। क्या -4 का -4 किसका स्क्वायर होगा? -4 किसका स्क्वायर होगा? क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर -4 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस केस में हमारा जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, इसलिए ये हमारा ऑन टू नहीं होगा, ये हमारा ऑन टू नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सेम फंक्शन जब हम डोमेन या कोडोमेन सेट चेंज कर देते हैं तो हमारा 1 1नेस इफेक्ट होती है, ऑन टू नेस भी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, हमने ये 1 1 के केस में देखा, ऑन टू नेस भी देखा हमने x+3 वाले केस में। तो 1 1नेस और ऑन टू नेस आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। और जो फंक्शन, अ फंक्शन which is both 1 1 and on 2 is known as bijective. A function which is both injective and surjective is known as bijective. ठीक है, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं, फंक्शन को पहले बाइजेक्टिव होना पड़ेगा इन्वर्टिबल होने के लिए। ठीक है, उनका हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा, उससे पहले इन्वर्टिबल जाने से पहले हम चीज समझते हैं, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अच्छा, आपने फंक्शंस पढ़े, फंक्शन का एडिशन पढ़ा, फंक्शन का प्रोडक्ट पढ़ा। फंक्शन का एडिशन कैसे डिफाइन किया था हमने, ये किसके इक्वल होता है, f(x) प्लस g(x), f.x(x), f(x) into g(x), f minus g(x) is equals to f(x) minus g(x). आपने पढ़ा f(x) by g(x), provided that g(x) is not equals to 0 for any x.
फॉर एनी एक्स, फॉर ऑल एक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तब ये डिफाइंड होगा। आपने इतने ऑपरेशंस पढ़े हैं फंक्शन में। नाउ द ऑपरेशन वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या कहते हैं कि f हमारा फंक्शन मान लीजिए a से b सेट पे है, और g हमारा फंक्शन जो है वो b से c सेट पे है। तो ये हमारा a, b एंड c। यहाँ से यहाँ हमारे पास a f है, यहाँ से यहाँ हमारे पास g है। यहाँ पे कोई एलिमेंट x है तो उसकी इमेज यहाँ क्या होगी, f ऑफ x होगी। f ऑफ x कोई एलिमेंट यहाँ है तो g के अंडर इसकी इमेज यहाँ क्या होगी, g ऑफ f ऑफ x, ये इसकी इमेज होगी, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन क्या कहता है, सबसे पहले तो द रेंज सेट ऑफ f जो है, जो f की रेंज आएगी वो g की डोमेन में होनी चाहिए। देख पा रहे हो आप, इसकी रेंज, f की रेंज b का सबसेट है और b हमारा g की डोमेन है। तो f की जो रेंज है वो g की डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। यहां से यहां हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, g ऑफ f। ये जो साइन है ये किसका साइन है, कॉम्पोजिशन का साइन है, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x जो है वो यहां से यहां एक फंक्शन होगा, सॉरी अलग से लिखते हैं, यहां से यहां हमारा फंक्शन जो होगा उसका हम क्या बोलेंगे, g ऑफ f। तो g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f जो फंक्शन है वो इस x एलिमेंट को किस पे मैप करेगा, g ऑफ f ऑफ x पे, इस एलिमेंट पे मैप करेगा, ठीक है। तो हमने कॉम्पोजिशन, अगर f एक मैप दे रखा है, g एक मैप दे रखा है, तो फर्स्ट कंडीशन कि f की जो रेंज है वो g की डोमेन में होनी चाहिए। और दूसरा डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन हम करेंगे g ऑफ f इज अ मैप फ्रॉम a टू c। देखो समझने के लिए या याद रखने के लिए फ्यूचर आप क्या ध्यान रखोगे कि अगर आप g ऑफ f रख रहे हो तो f कहाँ डिफाइंड है, वही डोमेन बनेगी g ऑफ f की। f की जो डोमेन है g ऑफ f की भी डोमेन वही बनेगी। अगर आपने f ओ g लिखा तो जो लास्ट में g की जो डोमेन है वही f ओ g की डोमेन बनेगी, ठीक है। तो जो पीछे लिखा गया है वह उसी की डोमेन पे ये हमारा कॉम्पोजिशन डिफाइंड होगा, ठीक है। और c g की रेंज होगी, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x कैसे डिफाइन किया, g ऑफ f ऑफ x, जैसे कि अगर मैंने f डिफाइन किया फ्रॉम a टू b सच दैट f ऑफ x इज x प्लस 3, और मैंने g डिफाइन किया फ्रॉम b टू c सच दैट g ऑफ x इज y लिख लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि a सेट से है, ये b सेट से है। g ऑफ y इज y माइनस 3, ठीक है। तो अगर मैं f ऑफ g ऑफ, देखो g, f ऑफ g कहाँ से डिफाइन होगा, पीछे क्या है g, तो ये कहाँ से डिफाइन होगा, देखो f ओ g को डिफाइन होने के लिए g की रेंज यानी c f की डोमेन में होनी चाहिए, जो है नहीं है, तो f ओ g इस पे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या डिफाइन करेंगे, g ऑफ f डिफाइन कर लेते हैं भाई, वो कर सकते हैं क्या, देखो f की रेंज यानी कि b, ठीक है, b हमारी g की डोमेन, ओ बहुत बढ़िया, f की रेंज b का सबसेट है जो हमारे g यानी g के डोमेन यानी b का सबसेट है, सही बात है। तो f पीछे है तो यहाँ पे क्या आएगा, f का डोमेन, g आगे है
तो यहाँ क्या आएगा, जी का कोडोमेन सी। तो जी ऑफ एफ हमारा जो फंक्शन होगा वो ए से सी होगा। ठीक है, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, हमने बोला जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप x पे पहले f ऑपरेट कीजिए, x पे f ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+3। फिर आप g ऑपरेट कीजिए तो आपके पास x+3 की इमेज अंडर दिस मैप क्या आएगी, y की जगह x+3 रखिए, x+3 -3 क्या आ गई, x आ गई। तो यहां से आपके पास g ऑफ f ऑफ x क्या आया, x आया। ठीक है, तो g ऑफ f हमारा जो फंक्शन है, आपने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, x को x पर ही मैप करता है। ठीक है, तो g ऑफ x जो है वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सबसेट a, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, a x को x पर ही लेके जा रहा है। ठीक है, बेसिकली ये चीज समझ आ गई होगी आपको कि कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, कि पहले एफ ऑपरेट करना है फिर जी ऑपरेट करना है। अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि ये कम्यूटेटिव हो। इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जी ऑफ एफ जो है वो एफ ऑफ जी के इक्वल आए, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन कम्यूटेटिव मे और मे नॉट बी। ठीक है, अगर हम बात करें एसोसिएटिव, तो कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव हो जाएगा। एसोसिएटिव का क्या मतलब है, जी ऑफ एफ ऑफ एच इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एच। मतलब क्या है कि आप पहले एफ ऑफ एच ऑपरेट कीजिए एक्स पे, उसके बाद जी ऑपरेट कीजिए, या फिर पहले एच ऑपरेट करके फिर जी ऑफ एफ ऑपरेट कीजिए। ब्रैकेट चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो फंक्शन है वो सेम रहेगा। तो ये फंक्शन एसोसिएटिव होता है कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन के बारे में ये चीजें हो गई, डिफाइन हमने कर दिया। ध्यान चीज क्या ध्यान रखना है आपको कि इसकी रेंज इसकी डोमेन में का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ओके, कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा कॉम्पोजिशन ये भी हमने बता दिया। कॉम्पोजिशन कैसे निकालना है ये हमने सीख लिया। अब इसके बाद आता है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि फंक्शन बायोजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फंक्शन लूं, so let us take a function f of x equals to 2x, f is from r to r। ठीक है, तो बताइए क्या ये 1 1 है, ये ऑन टू है। तो अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी एलिमेंट उठाइए, यहाँ से ऑन टू चेक करते हैं हम पहले। कोई भी एलिमेंट अगर मैं y उठाऊं r से, तो आप y/2 ले लीजिए। अगर आप इसकी इमेज निकालोगे तो क्या आएगी, 2 इंटू y/2 यानी y। तो आप हर एक एलिमेंट इन रियल नंबर के लिए, एलिमेंट इन को डोमेन के लिए आपको एक एलिमेंट इन डोमेन मिल रहा है। y/2 एक रियल नंबर होगा, अगर y एक रियल नंबर है तो मिल रहा है।
कि जिसकी इमेज हमारी y आ रही है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू हो जाएगा। अगर हम 1 की बात करें, तो अगर हम लेके चलें कि f ऑफ x1 और x2 हमने दो लिए रियल नंबर आर्बिट्रेरी, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x1 इज 2x1 एंड f ऑफ x2 इज 2x2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच जाए x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, ये 1 1 भी हो गया। तो ये हमारा 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो बाइजेक्टिव होगा, अगर वो बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल होगा। अच्छा, इन्वर्टिबल की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें फॉर्मली, तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि f एक फंक्शन है, उसको हम इन्वर्टिबल बोलेंगे। f be a function from a to a is said to be invertible if there exists a function g such that f of g is identity and g of f is also identity। ठीक है, a to a भी ले सकते हो आप, x to y भी ले सकते हो। x to y लिखते हैं, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। x to y अगर हमने लिखा तो एक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा। g कहाँ से होगा, g होगा y टू x। ठीक है, तो f ऑफ g की डोमेन क्या है, y। तो f ऑफ g इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू f की रेंज क्या है, y। तो यहाँ पे ये होगा आइडेंटिटी ओवर y। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ g इसका मतलब है कि f ऑफ g of y be an arbitrary element of capital Y is y। ठीक है, अच्छा, f की डोमेन क्या है, f की डोमेन है x। तो g ऑफ f जो होगा वो हमारा होगा फ्रॉम x टू रेंज ऑफ g इज x। g ऑफ f होगा हमारा x टू x। तो ये आइडेंटिटी बनेगा ओवर x। इसका मतलब क्या है कि g ऑफ x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये और ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, हमें एक ऐसा g मिल जाए f के लिए, तो f को हम क्या बोलेंगे, वो इन्वर्टिबल है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो वो g क्या है। अब इस g को क्या बोलते हैं हम, ये g क्या कहलाता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन f। इनवर्स ऑफ फंक्शन f। ठीक है, इसको निकालना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।